Good morning to all my students of class 10th. Now today we will discuss the more questions regarding to the last chapter and the last exercise of the chapter circle. प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, बीच में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वो रह गया था और अभी हम डिस्कस करते हैं फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. In question number 9, we have a circle. This is question number 9. In question number 9, we have a circle with center O, and on the boundary means circumference of a circle, we have a two parallel tangent as you can see in the picture, xy as well as x dash y dash. These two parallel tangent are touching to the circle at the point P and Q. You can see in the picture. Clear? So POQ is a diameter, and we have a triangle AOB. And our main motive is to prove that angle AOB is a right angle. Means angle AOB will be 90. यह प्रूव करना है. ठीक है, कैसे करेंगे जरा सुन लीजिए फटाफट. POQ डायमीटर है, तो ध्यान से देखिए OP, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए OP देन OQ. OP इज अ रेडियस, XY is a tangent, so radius is always perpendicular to the tangent. Clear? So angle OPA is 90. In similar way OQB is also 90. Clear? Now we will move in the quadrilateral APQB. अब हम मूव करेंगे क्वाड्रिलेटरल APQB के अंदर. ठीक है, और यहां पे हम ये कहेंगे कि भाई ये दो एंगल 90 हो चुके हैं. इट मींस इन दोनों का सम हो गया 180. But sum of all angles in the quadrilateral is always a 360. So remaining two angle means PAC plus CBQ means the sum of these two angle is also 180. But you can see that from the point A as well as from the point B we have a pair of tangent. Means AP will be equals to AC and BC will be equals to BQ, and by theorem we know that the line from the point outside point to the center of a circle is always bisect this angle. It means PAO will be equals to OAC. These two angles will be equal. In similar way CBO will be equals to QBO. Clear? So हम यहाँ पे फिर ये बात लिख सकते हैं कि भाई OAC 2 टाइम ऑफ OAC plus 2 टाइम ऑफ OBC will be equals to 180. ठीक है, और फिर हम लास्ट में जाएंगे ट्रायंगल AOB के अंदर, यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी और उससे एंगल AOB 90 आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए फटाफट पहले हम यहां पे लिखते हैं प्रूफ. प्रूफ में हम लिखेंगे बिकॉज XY एंड X डैश Y डैश आर टू टेंजेंट. क्योंकि ये दोनों टेंजेंट हैं, तो जब ये दोनों टेंजेंट हैं तो हम यहाँ पे बात लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज OP is perpendicular to XY as well as OQ is also perpendicular to X dash Y dash. It means angle OPA plus angle OQB is equals to 180. This implies angle QPA plus angle BQP
इज इक्वल्स टू 180। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इन दोनों का सम 180 हो गया। अब हम चलते हैं इन क्वाड्रिलेटरल PABQ, और अब हम यहां पे लिखेंगे कि एंगल QPA प्लस एंगल BQP प्लस रिमेनिंग टू एंगल, इट मीन्स PAB प्लस ABQ इज इक्वल्स टू 360। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई इन सभी एंगल्स का सम 360 हो जाएगा, बट सम ऑफ दीज टू इज ऑलरेडी 180, सो 180 प्लस PAB को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम ऑफ एंगल 1, सो 2 टाइम ऑफ एंगल 1 प्लस ABQ, this will be 2 टाइम ऑफ एंगल 2 is equals to 360. This implies 2 कॉमन ले रहा हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equals to 360 minus 180 upon, so this is आएगा 360 minus 180. So this implies angle 1 plus angle 2 is equals to 180 upon 2 means 90। तो इस तरह से हमने ये बात यहाँ पे प्रूव कर दी है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90। इट मीन्स एंगल OAC प्लस ABO इज इक्वल्स टू 90। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equals to 90. Now we will move in the triangle AOB. In triangle AOB, and we can write that angle AOB plus angle 1 plus angle 2 is equals to 180. But you can observe that sum of angle 1 plus angle 2 is already 90. So this implies angle AOB plus 90 is equals to 180. So this implies angle AOB is equals to 90 degree. Hence proved. ठीक है, दोबारा फिर देख लीजिए फटाफट। देखिए पिक्चर में फटाफट, यहाँ पे जो हमारे पास में पहले सबसे पहले एक सर्कल है, और इस सर्कल की अपर सरफेस पर 2 पैरेलल टेंजेंट हैं, XY एज वेल एज X डैश Y डैश। सो XY एंड X डैश Y डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट विच आर टचिंग टू अ सर्कल एट अ पॉइंट P एज वेल एज पॉइंट Q. So POQ is a diameter, and we have another triangle AOB, in which we have to prove that the angle AOB means angle formed by the line AB at the circle means AOB is equals to 90. क्लियर? हमें ये बात प्रूव करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फटाफट से सुन लीजिए चलने से पहले। सबसे पहले तो ध्यान से देखिए कि जो POQ है, यहाँ पे OP and OQ both are radius, and we know very well that radius is always perpendicular to the tangent. Clear? So OP as well as OQ both are perpendicular to XY and X dash Y dash. Clear? So whenever OP is perpendicular to the XY and OQ is perpendicular to X dash Y dash, then the sum of angle QPA plus angle BQB is equals to 180. Clear? Now we will move in the quadrilateral PABQ. In this quadrilateral, sum of all angles means sum of 4 angles according to the rule
is will be equals to 360. It means angle QPA plus angle BQB plus angle PAB plus angle ABQ is equals to 360. So this implies that angle QPA plus angle BQB ये तो ऑलरेडी हो चुके हैं 180. So 180 plus 2 time of angle 1 plus 2 time of angle 2 is equals to 360. So ये 180 जो आप देख रहे हैं लेफ्ट में ये मूव करेगा राइट साइड में एंड वी हैव ओनली 2 टाइम ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180. रिजल्ट कितना बचेगा 180, बस उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन आ चुका है एंगल 1 और एंगल 2 में से. क्लियर? रही बात ये कि भी PAB कैसे हो गया डबल ऑफ एंगल 1 और ABQ डबल कैसे हो गया एंगल 2. तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम थी कि जब आप किसी पॉइंट से पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द सर्कल वहां से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं मींस आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो ये एंगल बनता है वो इक्वल होता है. ठीक है. सो PAB कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 टाइम एंगल 1. दिस इज 1, दिस इज 2. सो in this way angle PAB is 2 time of angle 1 and angle ABQ is 2 time of angle 2. When it is transferred from the left to the right and remaining portion, in the remaining portion 2 is common. So in this way angle 1 plus angle 2 is equals to 180 upon 2 means 90 degree. So angle 1 plus angle 2 is 90. Clear? So now we will move in the triangle AOB. अब हम ट्रायंगल AOB मूव करेंगे और जब हम AOB ट्रायंगल में मूव करेंगे तो हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल विल बी 180. सो एंगल AOB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, AOB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180. Now replace the value of 1 plus 2 which is 90 and 90 will be moved from left to right and finally we have angle AOB is equals to a right angle means 90. Clear? Hence proved. तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. In question number 11, prove that a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. हमें ये बात प्रूव करनी है कि यदि सर्कल के बाहर एक पैरेललोग्राम जनरेट किया जाए, a parallelogram in which all the 4 sides will be a tangent of a circle, then that parallelogram will be a rhombus. So we have a circle like this and in this circle we have a parallelogram circumscribing to this circle like this. We have a parallelogram ABCD. So you can observe in the picture we have a circle and which is circumscribing a parallelogram ABCD. ABCD is a parallelogram. तो क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन पार्ट में क्या लिखेंगे आप,
गिवन पार्ट में आप लिखेंगे वी हैव अ पैरेललोग्राम ABCD, इट मीन्स AB इज इक्वल्स टू CD एज वेल एज पैरेलल, BC इज इक्वल्स टू AD एज वेल एज पैरेलल। भाई क्या होता है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आमने सामने की अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। क्लियर? A quadrilateral is said to be a parallelogram only when the opposite pair of sides are equal as well as parallel to each other. So क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं। हम क्वेश्चन में लेकर के चल रहे हैं फिलहाल ABCD is a parallelogram। जब ABCD पैरेललोग्राम है तो ये बात इंप्लाइज करती है कि फिर तो यहाँ पे AB वो इक्वल्स टू होगा CD के, और एज वेल एज ये इसके पैरेलल भी होगा। इन सिमिलर वे वी कैन राइट आल्सो दैट BC इज इक्वल्स टू AD एंड पैरेलल आल्सो BC इज पैरेलल टू AD। नाउ main motive is we have to prove that the parallelogram ABCD is a rhombus also. So to prove में क्या लिखेंगे हम? ABCD is a rhombus। हमें ये प्रूव करना है कि ABCD एक rhombus है। Now proof। इन प्रूफ फर्स्ट ऑफ ऑल जरा ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ था क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने एक बात प्रूव की थी कि यदि कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को टच करता है आउटसाइडर, तो तब सम ऑफ द अपोजिट साइड इज इक्वल्स टू ईच अदर। It means we can write from the result of question number 8 that AB plus CD is equals to BC plus AD. Listen again. If a quadrilateral is circumscribing to a circle, then the result of question number 8 we can write here that AB plus CD is equals to BC plus AD. क्लियर? तो हम यहां पे लिखेंगे बिकॉज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing to a circle, so AB plus CD is equals to BC plus AD। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये बात प्रूव की थी क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये बात प्रूव की थी कि यदि कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को टच करता है, इट मींस वी हैव 4 टेंजेंट आउटसाइड द सर्कल, देन सम ऑफ अपोजिट पेयर will be equals to each other. So this is a first equation, but according to the question number 11 ABCD is a parallelogram. So अभी हमने रिजल्ट जो यूज किया वो क्वेश्चन नंबर 8 का था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में वापस। 11 में क्या दिया है कि ये ABCD कोई ऐसा वैसा क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये अपने आप में एक पैरेललोग्राम है। तो जब ये अपने आप में एक पैरेललोग्राम है तो जो आप साइड देख रहे हैं AB और CD, उनकी मेजरमेंट तो अपने आप में इक्वल होगी। इट मीन्स वो आपस में डिफरेंट नहीं होगी। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन AB एंड CD, BC and AD. These are equal in the measurement. So we can replace AB by CD and BC by AD. फिर हम लिखेंगे but ABCD
अ पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज कि AB वो इक्वल्स टू SCD के और AB वो पैरेलल टू SCD के। फिर हम ये बात भी लिखेंगे कि BC वो इक्वल्स टू है AD के और BC तो पैरेलल है AD के। So from equation first we can write that CD plus CD is equals to AD plus AD. It means 2 times CD is equals to 2 times AD. This implies CD is equals to AD. CD and AD दोनों अपने आप में इक्वल हैं। अभी तो हम बोल रहे हैं कि CD और AD बराबर हैं, बट इससे पहले क्या बोल रहे थे? इससे पहले बोल रहे थे कि CD तो AB के बराबर है और AD BC के बराबर है। इट मीन्स 4 साइड्स अपने आप में इक्वल हो गई। दोबारा फिर सुन लीजिए, लास्ट में हमने लिखा कि CD AD के बराबर है, ठीक है। पिक्चर में ध्यान से देखिए आप, CD किधर है और AD किधर है, देख लिया। चलिए, CD AD के बराबर है, लेकिन हमने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था गिवन पार्ट में कि CD तो AB के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है। और वही CD अब आप कह रहे हैं कि AD के बराबर हो चुकी है, लेकिन AD वो तो क्वेश्चन में पैरेललोग्राम की साइड है, तो AD तो बराबर हो गया फिर BC के, ठीक है। तो कुल मिलाकर के चारों साइड अपने आप में इक्वल हो गई। एंड दिस इम्प्लाइज दैट ABCD इज अ रोम्बस। किसी क्वाड्रिलेटरल को यदि रोम्बस प्रूव करना होता है तो हम उसकी चारों साइड की मेजरमेंट को इक्वल प्रूव कर देते हैं। एनी क्वाड्रिलेटरल, इफ एनी क्वाड्रिलेटरल हैव द इक्वल साइड्स देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। सो वी कैन राइट हियर दिस इम्प्लाइज AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, and this implies ABCD is a rhombus. क्लियर? सो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि ABCD अपने आप में एक रोम्बस है, ठीक है। चलिए आगे, तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस।